Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the vector in 2D. As you know that in your syllabus of term 2, vector in 2D is going on. So now today we will discuss the topic dot multiplication and cross multiplication. The result of dot multiplication is always a scalar, while the result of cross product is always a vector quantity. Remember it always. So A dot B, whenever you multiply these two vectors in dot form, means A dot B is equals to modulus of A into modulus of B into cos theta. So it is the formula of dot product where modulus of A and modulus of B represent the magnitude of two vector A and B. Clear? So suppose you want to obtain the angle, you want to find out the angle between two vector, then with the help of this formula we can also find the value of theta between two vector. Suppose we have vector A like this and vector B like this, and we want to find out the value of theta between these two vector, then by using this formula, which is A dot B is equals to modulus of A modulus of B into cos theta. So by using this formula you can find the value of theta. So cos theta will be equals to A dot B upon modulus of A into modulus of B. So by using this formula you can find the value of theta between the two vector A and B. Suppose we have an example in which vector A is I plus j plus 2k and vector B is 2I cap plus j cap minus k cap. So we have a vector A and vector B. You can see in the picture. So first of all, we have to find out the value of A dot B, and A dot B will be vector A dot vector B is equals to I plus j plus 2k. यहाँ पे सुनिए ध्यान से जरा एक बात, वो ये है कि सबसे पहले आपको वेक्टर A और वेक्टर B की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर A और वेक्टर B की डॉट प्रोडक्ट करेंगे. क्लियर? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को. डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को हम मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप के साथ, के कैप विद के कैप. तो यहाँ पे जो सेम कंपोनेंट होते हैं वही एक दूसरे में मल्टीप्लाई होते हैं. आई कैप विद आई कैप, जे कैप विद जे कैप, के कैप विद के कैप. तो इस तरह से इसको आप याद रखें हमेशा. सो जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए which is I plus j plus 2k, then vector b which is 2I cap plus j cap minus k cap. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट. सो 1 into 2 रिजल्ट इज 2, फिर 1 into 1 रिजल्ट इज 1, 2 into -1 -2, so result is 1. So A dot B is 1.
and remember dot product is always a scalar value. So due to this, vector A dot vector B is equals to 1 and 1 is totally scalar value. Now modulus of A will be sum of the squares of the component of I cap, J cap and K cap. हमारे पास में वेक्टर A में जो कंपोनेंट है I cap का वो 1 है, कंपोनेंट ऑफ J cap वो 1 है, कंपोनेंट ऑफ K cap वो 2 है. So square of 1 plus square of 1 plus square of 2. So result is 4 plus 2 means 6. उसके बाद modulus of B is equals to under root of component of I cap उसका स्क्वायर करेंगे, component of J cap उसका स्क्वायर करेंगे, component of K cap उसका स्क्वायर करेंगे. So we have square of 2 plus square of 1 plus square of minus 1 is equals to, तो यहां से आएगा 4 plus 2 it means 6. So you can observe the value of modulus A and modulus B is root 6. Now put these values into the formula and formula is cos theta is equals to A dot B upon modulus of A into modulus of B. ठीक है, तो रखिए फटाफट वैल्यू. A dot B is 1, modulus of A is root 6, modulus of B is root 6, so we have 1 upon 6. Clear? So in this way the value of cos theta is 1 upon 6 and this implies value of theta will be cos inverse 1 upon 6. It means जो हम वेक्टर लेके चले थे वेक्टर A और वेक्टर B, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो cos इनवर्स 1 upon 6 बन रहा है. क्लियर? सो इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं. चलिए मैं वो क्वेश्चन लेके चलता हूँ फिलहाल यहाँ पे, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर डिस्कस करेंगे आगे. आइए तो चलिए फटाफट एग्जांपल लेके चलते हैं. और सपोज वी हैव अ वेक्टर C लाइक दिस 2i minus j plus 4k cap and vector D is minus I cap plus j cap plus 2k cap. सो इस तरह से मेरे पास में ये वेक्टर C और वेक्टर D दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि हमें वेक्टर C और वेक्टर D इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. जो हमारा मेन मोटिव है फिलहाल वो हमें इन दोनों वेक्टर C और D के बीच का एंगल फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, जब हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे कि C डॉट D इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ C मॉडुलस ऑफ D इनटू cos थीटा. ऐसे लिखेंगे हम. दिस इंप्लाइज cos थीटा is equals to vector C into vector D upon modulus of vector C modulus of vector D. तो इस तरह से जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा तो हमें उन दोनों वेक्टर की पहले डॉट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उस डॉट मल्टीप्लाई को हमें उनके मॉडुलस मींस
मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। मॉडुलस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय मॉडुलस। सो रिमेंबर ऑलवेज, मॉडुलस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले यहां पे निकालिए डॉट प्रोडक्ट। सो वी हैव टू राइट वेक्टर c इनटू वेक्टर d इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप इनटू वेक्टर d माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब कर दीजिए इनकी दोनों की डॉट मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद माइनस 1 इंटू प्लस 1 इट विल बी माइनस 1, उसके बाद 4 इंटू 2 रिजल्ट विल बी 8। इसको सॉल्व कीजिए, 8 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, सो वी हैव 5। So dot product of these two vector, vector c and vector d is 5। तो चलिए अब निकालते हैं दोनों का अलग अलग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर c एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर d। मॉडुलस ऑफ वेक्टर c will be under root square of कंपोनेंट ऑफ i कैप उसका स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ j कैप उसका स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ k कैप उसका स्क्वायर। इट मीन जितने कंपोनेंट हैं उनका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ i कैप 2, कोफिशिएंट ऑफ j कैप -1, कोफिशिएंट ऑफ k कैप 4, तो इन तीनों का स्क्वायर करके सम कीजिए, दैट विल रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ वेक्टर c और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। सो इट विल बी स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ 4। सो रिजल्ट इज 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21। सो स्क्वायर रूट ऑफ 21। नाउ मॉडुलस ऑफ वेक्टर d which is -1 then +1 then +2, so under root square of -1 square of 1 and square of 2 and result will be under root 4 plus 2 result is 6 root 6। क्लियर? चलिए अब ये सभी वैल्यूज हम फॉर्मूले के अंदर फिट कर देते हैं फटाफट। सो cos थीटा is equals to c dot d, वो आ जाएगा मेरे पास 5, तो रखिए 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ c which is √21, मॉडुलस ऑफ d which is √6। so cos theta is equals to 5 upon under root 1 to 6। so theta is cos inverse 5 upon square root 1 to 6। so this is the angle between the vector c and d। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर डिस्कस करते हैं अनदर कंसेप्ट एंड विच विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तो चलिए फटाफट क्रॉस में क्या होता है, सपोज यू हैव अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर हैं
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको फाइंड करना है इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू a cross b is equals to modulus of vector a modulus of vector b into sin theta into n cap. Due to n cap, it is a vector quantity, remember it, ठीक है, otherwise it will be a scalar। समझ में आ गई बात? So cross product, we have vector a and vector b. In cross product, a cross b is equals to modulus of a modulus of b into sin theta into n cap. So n cap is the unit vector and which is the perpendicular to cross product always. And due to n cap, it is a vector quantity. Remember it always. Due to n cap, it is a vector quantity। चलिए, तो हमें क्वेश्चन लेके चलेंगे अभी जिसमें हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, वो बात हम यहाँ पे सीखेंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बात और आ जाए कि सर हम जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो वो तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, साइन थीटा हमारे पास में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करते हैं। तो जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने वाला कंसेप्ट आए तो आप फार्मूला याद रखें। फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो इस फार्मूले को आप याद रखें। चलिए, तो फटाफट लेके चलते हैं दो वेक्टर। लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। Then procedure is a cross b is equals to modulus. First of all, in first row we have to write down I cap, j cap and k cap, and after this in second row and third row, in second row we have to write down the coefficient of I cap, j cap and k cap. In third row we have to write down the coefficient of I cap, j cap and k cap from the second vector। जो फर्स्ट वेक्टर है a, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप लिखेंगे सेकंड रो में। जो लास्ट वेक्टर है वेक्टर b, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे आप लास्ट रो में। तो ये बात ध्यान रहे, फर्स्ट रो फिक्स है I cap, j cap एंड k cap, और हम सब कुछ करेंगे ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में। डिटरमिनेंट को ओपन करना आप जानते हैं क्योंकि ये टर्म 1 में आपके पास था। इट वाज द सिलेबस ऑफ टर्म 1। क्लियर? सो इन सेकंड रो वी हैव टू राइट डाउन 1 1 1 एंड इन थर्ड रो वी हैव टू राइट डाउन 2 3 4। अब इसको आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। तो मैंने बताया भी था आपको कि जब आप किसी रो के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करते हैं तो वहां पे साइन रूल प्लस माइनस प्लस वर्क करता है। डिटरमिनेंट के चारों कोनों होता है 4 प्लस, बीच में होता है प्लस और बाकी होता है माइनस। सो इसको हम ओपन कर रहे हैं अलोंग दी फर्स्ट रो। सो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू I कैप। अब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है वो लिखिए 1 1 3 4। उसके बाद आ जाएगा माइनस j, डिटरमिनेंट 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4।
उसके बाद आएगा के कैप। के कैप में क्या करेंगे आप? के कैप के लिए आप जो थर्ड रो देख रहे हैं, सॉरी थर्ड जो रो देख रहे हैं, थर्ड कॉलम देख रहे हैं, छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए। तो आपके पास बचेगा 1 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से फटाफट अब इसको ओपन कर दीजिए। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं अब ऊपर। सो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू आई कैप ऐसे ही रहेगा। जब डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई होती है, फिर आता है बीच में माइनस साइन, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होती है। सो 1 into -4 रिजल्ट इज -4। सो -4 -3, चलिए आगे -j कैप, और फिर आ जाएगा ये 1 into -4 मीन्स -4 -2। उसके बाद आ जाएगा फिर प्लस k कैप, और 1 into 3 3, -2 into 1 2। सो -7 i कैप, -6 और माइनस हो जाएगा +6 j कैप, और ये हो जाएगा प्लस k कैप। सो A क्रॉस B इज -7 i कैप +6 j कैप प्लस k कैप। सो इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फ्रॉम A क्रॉस B। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, एंगल निकालने के हों, फिर चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हों या फिर डॉट मल्टीप्लाई के लिए हों। बट रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर, बट रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह से आप बैठ करके अपने क्वेश्चंस करें पॉइंट 2 पॉइंट 3 इन सब में, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप डिस्कस करें फ्रीक्वेंटली एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल, इट्स योर ड्यूटी। सो डू दी प्रोडक्ट इन एक्सरसाइज पॉइंट 2 पॉइंट 3 एंड कंप्लीट दिस।